Hello friends, today we are going to start a new chapter, the Ganga. This lesson has been written by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India. In this lesson, the writer is telling us about the river Ganga and about his will and his testament, that how he wanted to be cremated after his death, and why he wanted that a handful of ashes should be thrown in the running water of Ganga. So let us start the lesson. I have received so much love and affection from the Indian people that nothing I do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. Now, in the first paragraph, the writer is telling us that I have received so much love and affection from the Indian people. Who is I? The writer. पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, I have received, मुझे प्राप्त हुआ है, so much love, इतना अधिक प्यार and affection और स्नेह from the Indian people, भारतीय लोगों के द्वारा, मतलब भारतीय लोगों के द्वारा मुझे जितना प्यार और स्नेह प्राप्त हुआ है, that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. फ्रैक्शन माने उसके अंश. तो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं उस प्यार और स्नेह के अंश मात्र को भी लौटा नहीं सकता. मीन्स कि जो प्यार जो स्नेह मुझे भारत के लोगों ने दिया है, उस प्यार के बदले में मैं कुछ भी कर दूं, लेकिन मैं उसका अंश मात्र भी लौटा नहीं सकता, उससे ऋण नहीं हो सकता. And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में प्रेम जैसी चीज़ का कोई भी रिपेमेंट नहीं हो सकता, उसके बदले में कुछ भी दिया नहीं जा सकता. Many have been admired, some have been revered. बहुत से लोगों की तारीफ़ की गई है. Some have been revered, revered माने सम्मानित, कुछ लोगों को सम्मानित किया गया है. But the affection of all classes of the Indian people, लेकिन भारत के हर श्रेणी, हर वर्ग के लोगों का स्नेह has come to me in such abundant measure, मुझे इतने अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है, that I have been overwhelmed by it, कि मैं उससे अत्यधिक प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ. Overwhelmed means आनंदित हूँ, प्रसन्न हूँ. I can only express the hope that in the remaining years I may live. मैं केवल इतना ही आशा कर सकता हूँ. I can only express the hope, मैं केवल इतनी ही आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग माने बचे हुए सालों में, आई मे लिव, जब तक मैं जीवित हूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों के प्यार और उनके लायक होने से अनवर्दी ना हो जाऊँ, अयोग्य ना हो जाऊँ. अर्थात मैं कोई ऐसा कार्य अपने शेष जीवन में ना करूं कि भारतवर्ष के लोग मुझे अपना प्यार देना बंद कर दें, मैं उनके प्यार के काबिल ना रहूं. तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मैं जब तक जीवित रहूंगा, भारत के लिए ऐसे कार्य करूंगा कि मुझे उनका प्यार मिलता रहे. ओके.
To my innumerable comrades and colleagues, I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. To my innumerable comrades and colleagues. Innumerable माने which cannot be counted, अनगिनत. कॉमरेड्स माने साथी, कलीग्स माने सहकर्मी, कलीग्स जो साथ में काम करने वाले हैं. तो टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, मेरे अनगिनत साथियों और सहयोगियों, सहकर्मियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं और अधिक गहन, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का ऋण अनुभव करता हूँ. मीन्स मैं उनके प्रति और अधिक ऋणी हूँ. और अधिक क्यों का मतलब भारतीय लोगों का प्यार और स्नेह जो मुझे मिला उसके लिए तो मैं उनका ऋणी हूँ. लेकिन जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, जो मेरे साथी हैं, मेरे सहकर्मी हैं, उनके प्रति मैं और अधिक कृतज्ञता का ऋणी हूँ. उनका मुझ पर कर्ज है. We have been joint partners in great undertakings and have shared the triumph and sorrows which inevitably accompany them. We have been joint partners. Joint माने जुड़ा हुआ, partners माने साथ में काम करने वाले, भागीदार. तो we have been joint partners. हम साथ साथ भागीदार रहे हैं. किसमें? इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में. बड़ा बड़ा कार्य उन लोगों ने क्या किया था? देश को आज़ादी दिलवाई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे. तो ये सब जो बड़े, और साथ साथ जेल गए थे. तो ये सारा क्या है? बड़े बड़े कार्य हैं. तो इन बड़े बड़े कार्यों में हम सहयोगी रहे हैं, संयुक्त भागीदार रहे हैं. जॉइंट माने संयुक्त, पार्टनर्स माने भागीदार. हम इन बड़े बड़े कार्यों में संयुक्त भागीदार रहे हैं. एंड हैव शेयर्ड, और हमने बांटे हैं, द ट्राइम्स माने जीत, एंड सॉरोज माने दुख. मतलब जब आप कोई काम करते हैं तो या तो उस काम में आपको सफलता मिलती है या असफलता मिलती है. जब सफलता मिलती है तो आप जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, दुख मिलता है तो वो भी आप अनुभव करते हैं. तो नेहरू जी कह रहे हैं कि जो भी काम हम लोगों ने मिलजुल करके किए थे तो हमने उसके सुख और दुख भी, उसकी जीत और हार को भी आपस में मिलकर बांटा था. विच इनएविटेबली अकम्पनी देम. देम किसके लिए आया? ग्रेट अंडरटेकिंग्स, मतलब जो निश्चित रूप से उनके साथ आते हैं. किनके साथ? जो कार्य हम करते हैं, या तो वो सफल होते हैं या असफल होते हैं, तो उनके साथ सुख या दुख का अनुभव होना आवश्यक है. तो उसको हमने साथ साथ शेयर किया है. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. When I die, जब मेरी मृत्यु हो, मीन्स हर किसी को किसी न किसी दिन मरना है. तो नेहरू जी कह रहे हैं when I die, जब मेरी मृत्यु हो, I should like, मैं पसंद करूँगा, my body to be cremated, कि मेरे शरीर का दाह संस्कार हो. cremated माने दाह संस्कार किया जाए, उसे जलाया जाए. इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, यदि मैं किसी विदेश में यानी दूसरे देश में जाकर मेरी मृत्यु हो, क्योंकि मृत्यु का तो समय स्थान हमें नहीं पता. तो कह रहे हैं यदि मेरी मृत्यु भारत में ना हो कि किसी दूसरे देश में हो, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार, दाह संस्कार वहीं पर किया जाए. एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और उस दाह संस्कार के बाद जो मेरी राख बचे उसे इलाहाबाद भेज दिया जाए. अ स्मॉल, इलाहाबाद क्यों कहा? क्योंकि इलाहाबाद में उनका पैतृक मकान है बच्चों, आनंद भवन. अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसमें से एक मुट्ठी, हैंडफुल माने मुट्ठी, एक मुट्ठी राख को गंगा में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए. And the major portion of them disposed of in the manner indicated below, और उसका बड़ा हिस्सा यानी थोड़ा सा एक मुट्ठी राख गंगा में डालने के बाद जो बड़ा हिस्सा बचेगा उसे नीचे बताए हुए तरीके से
डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसका निस्तारण किया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेट शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। मेरी अस्थियों के अंतिम संस्कार के बाद जो भी एशेज हैं उसका कोई भी अंश, नो पार्ट, कोई भी अंश किसी तरीके से रखा ना जाए, बचाया ना जाए और ना ही कहीं सुरक्षित रखा जाए। मीन्स मेरे दाह संस्कार के बाद जो राख है उसको एक मुट्ठी गंगा में प्रवाहित किया जाए और बाकी जो बचे हुए भाग है उसको मैं नीचे जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से उसका निस्तारण किया जाए। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, I have no religious sentiment in the matter. I have been attached to the Ganga and the Jamuna rivers in Allahabad ever since my childhood, and as I have grown older, this attachment has also grown. बच्चों, इस पैराग्राफ में राइटर हमें बता रहे हैं कि वो गंगा में जो अपनी एक मुट्ठी राख प्रवाहित करवाना चाहते हैं उसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है। उसके पीछे उनका गंगा के प्रति लगाव है, क्योंकि वो इलाहाबाद में रहते थे और गंगा नदी के पास अक्सर वो जाया करते थे, उसमें नहाया करते थे, तो इसलिए वो इस पैराग्राफ में आपको यही बता रहे हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. Religious माने धार्मिक, significance माने महत्व। My desire, मेरी इच्छा, to have a handful of my ashes, मेरी एक मुट्ठी राख को थ्रोन फेंका जाए in the Ganga at Allahabad, इलाहाबाद में गंगा नदी में, has no religious significance. उसमें कोई धार्मिक महत्व की बात नहीं है। मतलब कि मैं इसलिए नहीं चाहता कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित किया जाए कि इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये कोई धार्मिक जो महत्व है इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा इससे संबंध है, मीन्स कि जहाँ तक मेरा गंगा नदी से संबंध है वो अलग चीज़ है, इससे कोई धार्मिक संबंध की बात, धार्मिक महत्व की बात नहीं है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। इस मामले में, इन द मैटर माने इस मामले में मेरे मन में कोई भी धार्मिक भाव नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि गंगा नदी में अस्थि प्रवाहित होने से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, हिंदू धर्म के अनुसार, ये है ना। तो बच्चों, नेहरू जी ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संबंध में अपनी राख को गंगा में प्रवाहित करने के संबंध में कोई मेरा धार्मिक भाव नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन से, मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। अटैच टू माने जुड़ा रहा हूँ। क्यों जुड़े रहे हैं? क्योंकि नेहरू जी का घर जो कि आनंद भवन के नाम से फेमस है वो इलाहाबाद में है, तो वो इलाहाबाद में ही रहते थे और जब इलाहाबाद में रहते थे तो उनको गंगा और यमुना नदी में अक्सर वहाँ जाने का अवसर मिलता था। तो कह रहे हैं मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, मेरा गंगा से जुड़ाव, यमुना नदी से जुड़ाव, उससे लगाव भी बढ़ता रहा। I was there varying moods as the seasons changed. Seasons माने मौसम, जैसे जैसे मौसम बदलते थे मैंने उनके बदलते हुए तरह तरह के, वेरिंग माने भिन्न भिन्न, मूड को देखा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बरसात का मौसम होता है तो नदी में बाढ़ आ जाती है, जब गर्मी होती है तो नदी का पानी सूख के कम हो जाता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि मैंने मौसम के बदलने के साथ इन नदियों के डिफरेंट तरह तरह के मूड को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड tradition and song and story that have become
attached to them through the long ages and become part of their flowing waters and have often thought of, और मैंने अक्सर सोचा है, of the history, वो इतिहास, and myths, वो पौराणिक कथाएं, and tradition, और परंपराएं, and song, गीत, and story, कहानियाँ, that have become, जो बन चुकी हैं, attached, जुड़ी हैं, to them, उनसे, किनसे? गंगा और यमुना नदियों से, through the long ages, लंबे लंबे युगों से, and become part of their flowing water, और उनके बहते हुए जल का हिस्सा बन चुकी हैं। अर्थात नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने अक्सर उस इतिहास, उस पौराणिक कथाओं, उस परंपराओं, उन गीतों और कहानियों के बारे में सोचा है जो युगों युगों से गंगा और यमुना के बहते हुए पानी का हिस्सा बन चुकी हैं। वो उनसे पूरी तरह से जुड़ चुकी हैं। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी परंपराएं नदियों से जुड़ी हुई हैं। तो नेहरू जी यहाँ उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, उसी की ओर हमें बता रहे हैं कि जो भी गीत, जो भी इतिहास, जो भी परंपरा, जो पौराणिक कथाएं गंगा और यमुना नदियों से जुड़ी हैं, उनके धरती पर आने से जुड़ी हैं, उनसे रिलेटेड तरह तरह के जो मेले हैं, जो त्यौहार हैं, इन सब से जो जुड़ी हुई हैं कहानियाँ, मैं उनको भी सोचता हूँ क्योंकि वे सब भी अब उनके बहते हुए जल का एक हिस्सा बन चुकी हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of the triumph, her victories and her defeats. The Ganga especially is the river of India. The writer is telling us that गंगा नदी विशेष रूप से भारत की नदी है, is the river of India. वो भारत की नदी है, beloved of her people, और भारत के लोगों की प्यारी है। भारत के लोगों को गंगा नदी बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्वाइंड, जिसके चारों ओर, राउंड विच माने जिस गंगा नदी के चारों ओर, आर इंटरट्वाइंड, गुथी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातिगत यादें, हर होप्स, उसकी उम्मीदें, आशाएं, एंड फियर्स, और उसके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइब, उसके विजय गीत, ट्राइम्फ माने विजय, सॉन्ग्स माने गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार। तो गंगा नदी विशेष कर के भारत की नदी है और भारत के लोगों के लिए बहुत प्रिय है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, हर किसके लिए आया है? देश के लिए, इंडिया के लिए, भारत के देश के लोगों के लिए बहुत प्रिय है। राउंड विच आर इंटरट्वाइंड, जिसके चारों ओर गुथी हुई हैं हर रेशियल मेमोरीज, भारत माता के, रेशियल माने जातिगत यादें, हर होप्स, उसकी उम्मीदें, एंड फियर्स, उसके भय, उसके डर, उसकी विजय के गीत, उसकी विजय और उसकी हार। ये हर बच्चों जो है भारत के लिए आया है, गंगा के लिए नहीं आया है, कि भारतवर्ष की जो है देश से जुड़ी हुई जो विजय है, जो हार है, जो डर है, जो उम्मीदें हैं, जो यादें हैं, उन सब से गंगा नदी जुड़ी हुई हैं। She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. गंगा नदी हैज़ बीन, रही है, अ सिंबल माने प्रतीक, ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, भारत की युगों युगों से चली आ रही संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब गंगा नदी भारत की युगों से चली आ रही संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। हम भारत की संस्कृति और सभ्यता की बात बिना गंगा नदी के उल्लेख के नहीं कर सकते। एवर चेंजिंग, और गंगा नदी की क्या जो है विशेषता है? एवर चेंजिंग,
ये हमेशा परिवर्तित होती रहती। परिवर्तित से मतलब है बच्चों, इनके जल के स्तर में कभी बढ़ जाता है जल का स्तर, कभी कम हो जाता है। एवर फ्लोइंग, ये कभी भी थमती नहीं, रुकती नहीं, ये लगातार बहती रहती हैं। ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं और ट्रैवल करते करते दक्षिण में, ये जा कर के कोलकाता के पास गंगा सागर है, गंगा सागर में जा कर के गिरती हैं। तो इनकी यात्रा अनवरत चलती रहती है। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी ये हमेशा एक जैसी लगती हैं, यानी इनमें परिवर्तन होते रहते हैं, इनके जल के स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा एक लगती हैं। ये हमेशा ही पूजनीय है, हमेशा ही आदरणीय है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। शी, गंगा नदी मुझे याद दिलाती हैं स्नो कवर्ड पीक्स। स्नो माने बर्फ़, कवर्ड माने ढकी हुई, पीक्स माने चोटियाँ। ये मुझे बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों की याद दिलाती हैं। क्यों? क्योंकि गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा जो है गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है, जो कहाँ है? हिमालय में है। तो जब भी गंगा नदी को राइटर देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखते हैं, तो उन्हें उनका उद्गम स्रोत याद आता है जहाँ से वो निकलती हैं, वो ग्लेशियर याद आता है जहाँ से वो निकलती हैं। तो कह रहे वो हमेशा मुझे हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती हैं। एंड द डीप वैलीज़ ऑफ द हिमालय, और उसके बाद वो वहाँ से जब निकलती हैं तो कहाँ आती हैं? गहरी घाटियों में आती हैं। ऊपर पहाड़ से निकलकर नीचे घाटियों में यात्रा करते हुए वो पूरे देश में भ्रमण करती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं फिर वो मुझे उन डीप वैलीज़ की याद दिलाती हैं जहाँ वो ग्लेशियर से निकल कर के गिरती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, और जिनसे मुझे बहुत प्यार रहा है, मतलब मैं जिसको उन हिमालय की घाटियों को बहुत प्यार करता रहा हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन बिलो, और मुझे वो क्या याद दिलाती हैं? मुझे रिच माने धन धान से परिपूर्ण, समृद्ध, एंड वास्ट माने विशाल, प्लेन्स माने मैदान, और वो मुझे भारतवर्ष के समृद्धशाली और विशाल उत्तरी भारत के मैदानों की याद दिलाती हैं। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा पूरा जीवन और मेरा कार्य संपन्न हुआ है। मीन्स जहाँ मैं पूरा जीवन, अपना आजीवन मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है और मैंने कार्य किया है, उन उत्तर भारत के मैदानों की भी मुझे याद दिलाती हैं। तो गंगा नदी को मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे उनके उत्पत्ति स्थान हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ याद आती हैं। फिर उनका हिमालय की चोटी से नीचे हिमालय की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर उनका गिरना, उनका कलकल ध्वनि से उतरना याद आता है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही फिर मुझे वो बड़े बड़े विशाल समृद्धशाली, कृषि की दृष्टि से बहुत ही रिच वो मैदान याद आते हैं जहाँ पर मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है और जहाँ मैंने अपना सारा कार्य संपन्न किया है। Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in water, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea, and with something of the sea's power to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India running into the present and flowing on to the great ocean of the future। बच्चों ये पैराग्राफ में पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस है, तो आपको टुकड़े टुकड़े में पहले समझना है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। मॉर्निंग सुबह की, सनलाइट माने धूप में, सूरज के रोशनी में। स्माइलिंग मुस्कुराती हुई और नाच करती हुई, यानी सुबह की धूप में मुस्कुराती और नाचती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज फॉल, और शाम की परछाइयों के पड़ने पर अंधेरी यानी काली, ग्लूमी उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री रहस्य से भरी हुई। स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर,
जाड़े के दिनों में धीमी गति से बहने वाली ग्रेसफुल, बड़ी शालीन जल की धारा के रूप में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून माने बरसात, और बरसात के दौरान बहुत ही विशाल और गरजती हुई, ब्रॉड बोजम्ड, चौड़ी छाती वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग किसी समुद्र की तरह, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पार्ट टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के तरह ही विनाश की शक्ति से युक्त। द गंगा हैज़ बीन टू मी, गंगा नदी मेरे लिए रही हैं। अ सिंबल, एक प्रतीक, एंड मेमोरी, एक याद, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अतीत की, रनिंग इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहती हुई, दौड़ती हुई, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य के महान समुद्र की ओर बहती हुई। बच्चों, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। अब इसको कैसे देखेंगे? नेहरू जी कहते हैं कि गंगा नदी मेरे लिए क्या रही है? गंगा नदी हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी। पीछे से लेते हैं। गंगा नदी मेरे लिए भारतवर्ष के महान अतीत की यादों और प्रतीक के रूप में, साथ ही साथ वर्तमान में चलती हुई, वर्तमान में भी आती हुई, और विशालकाय भविष्य के समुद्र की ओर बहती हुई प्रतीत होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग रूपों का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्योंकि सुबह की धूप में ये मुस्कुराती और नृत्य करती दिखती हैं। शाम की रोशनी में, शाम की जब परछाइयाँ गंगा नदी में पड़ती हैं, यानी जब सूर्यास्त होने लगता है, शैडो पड़ती है उसकी, तो ये बड़ी अंधेरी, काली सी, उदास और रहस्य से भरी हुई दिखती हैं। जब जाड़े का दिन होता है तो इनमें जल कम हो जाता है और ये बड़ी धीमी गति से, बड़े ही शालीन ढंग से बहती हुई जल की धारा प्रतीत होती हैं। और जब मानसून, बरसात का मौसम आता है तो ये गरजती हुई प्रतीत होती हैं और विशाल हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विनाश करने में सक्षम विनाशकारी समुद्र की तरह ये भी विनाश की ताकत से युक्त चौड़ी छाती वाली हो जाती हैं। मीन्स जाड़े में ये सक्रिय हो जाती हैं और मानसून में ये बहुत ही विशाल हो जाती हैं, और इनमें भी समुद्र की तरह विनाशकारी क्षमता आ जाती है।